Hello and welcome everyone. I am Anand Bhogde, co-presented by Life in Bhiwandi and brought to you by Life in Bhiwandi channel. First of all, I would like to thank the entire audience who has given us so much love on all the platform. हम आप सभी सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों ने हमें हर प्लेटफॉर्म पे इतना प्यार दिया। हम जैसे कि आपको पता है कि एक नए कॉन्सेप्ट के साथ में भिवंडी के लिए नया कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं एंड वो है पॉडकास्टिंग। सो आज की जो हमारे मेहमान हैं, she has done some amazing work into education industry. She is well known personality amongst all the school and amongst all the staff faculty. और इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 37 years के करियर में बहुत कुछ अचीव किया है into school and education industry. So let me introduce you to Vishaka Sutar. She is the principal and founder of Scholars Group of Schools. She has over 37 years of experience into this industry and she has done some amazing work. So, basically, I am from Thane. I met my husband in the college and then of course I got married. एक भी आदमी ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए. मेरा किचन भी ऐसा था, विंडो गेट के सामने ही था. कोई अंदर आए और मैं भाग के बोले आओ आओ क्या चाहिए आपको, हाँ क्या चाहिए, क्या इंक्वायरी करने को. तो कोई आके बोलते थे इधर झाड़ बेच रहे. तो फिर मैं थोड़ी मायूस हो जाती थी, नहीं इधर स्कूल है. तब मैंने देखा कि मेरे जो बच्चे जो होली मेरी में जा रहे हैं, कहाँ तो भी मुझे लगा कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड. हर दिन एक चैलेंज था मेरे लिए, हर दिन. इट इज नॉट लाइक अ फैक्ट्री कम एंड गो. ऐसा नहीं है कि भाई बस एडमिशन के नाम हाँ लिया और फैक्ट्री के जैसा किया और निकल गए. नहीं, यू हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर 20 चिल्ड्रन ऑफ ईच क्लास. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम ऐसा नहीं बोलते कि यही भगवान को प्रार्थना करो. तुम आंखें बंद करके किसी तुम्हारे भगवान के बारे में सोचो और फिर प्रार्थना करो. There is no one name, it is only the Lord. कैसे कंट्रीब्यूट करेगी हमारे नेशंस को? मैं तो नेशन को नहीं बोलती, हमारे खाली सोसाइटी में भिवंडी को अच्छा बनाओ. उनका जो एनर्जी है उनका, उसको कहाँ स्पेंड करेगा वो? कहाँ वो फील्ड पे स्पेंड करना चाहिए. फिजिकल उनका स्टेमिना अगर नहीं रहेगा तो व्हाट इज द यूज इफ दे आर ओनली गोइंग टू सिट एट होम एंड मोबाइल पे बैठेंगे, यूट्यूब पे बैठेंगे, टीवी पे. डिसिप्लिन और हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है. Thank you so much, ma'am, for giving us this time. Thank you so much for your time into this busy schedule कि आपने हमें ये वक्त दिया और आपके साथ बातचीत करने का हमें मौका मिला. First of all, ma'am, how are you? Oh, I am very good. In fact, I am today excited and I am so happy with your introduction. So I am very honored. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It's our honor to be here. So, मैम before we start, तो usually हम हर किसी से पूछते हैं कि how you have done this, what ऐसी कौन सी चीज़ जो आपको क्लिक की कि आपने एक सिर्फ नर्सरी से इतना बड़ा एम्पायर क्लिक किया, या आपको क्या चीज़ क्लिक की कि मुझे नर्सरी स्टार्ट करनी चाहिए? So, basically I am from Thane. So I was born and brought up in Thane, and then I finished my graduation, and immediately I had not done my training. But that time it was need, kind of a need at that time, like financially. So I went for teaching without doing any course. And so I was a teacher in Thane in a school, Bharat English School. So after that, I think I was also a teacher and I was also pursuing my graduation. Yes. So as I was pursuing my graduation also, I met my husband in the college and then of course I got married. And I am a complete different background. Like I am a Catholic and he is a Maharashtrian Agri fellow. Okay. So of course there were some apprehensions in that, but finally it was decided that I had to come. The Almighty placed me in Bhiwandi. Okay. So I had to come over here, and I don't know what plans God had for me. So there were great plans what He had for me. Yeah, that and then I got married and I was a housewife for 5 years.
And then when I came here, I got married and all. Okay, everything was good and all. But when I came in this campus, there was only one house over here, no neighbors, and there were only gardens over here. There were, yes, and that time we never had so many channels, or we did not have social media also. Nothing. So I think, but then behind my mind, I was saying that, yeah, I have to do something. I have to do something. And then I started with 5 children. When I started the admission, I got 5 children. I was very excited. First day I got 3, then I got 2. And with that 5 children, I started the nursery in my grandmother-in-law's room. In the this and this, I had written Tiny Tots Nursery. So yeah, and people thought that maybe it is a nursery of plants, not a school nursery. No, they thought, because Bhiwandi was not that exposed to nurseries and all that time, I think. Excited when somebody enters, whether they are coming for admissions, whether they are coming for inquiry, as to wait, yes, let them come, let them ask. हाँ, मेरे को बहुत ऐसा लगता था कि हाँ, ये एक भी आदमी ऐसा खाली नहीं जाना चाहिए. मेरा किचन भी ऐसा था, विंडो गेट के सामने ही था. कोई अंदर आए और मैं भाग के बोले, आओ आओ, क्या चाहिए आपको, हाँ क्या चाहिए, क्या इंक्वायरी करने को. तो कोई आके पूछते थे इधर झाड़ बेच रहे, तो फिर मैं थोड़ी मायूस हो जाती थी, नहीं इधर स्कूल है. फिर कोई तो सच्ची स्कूल के लिए पूछते थे, तो आई वाज, हाँ, काउंटिंग करती थी, आज 1 हो गया, 2 हो गया. इन द एंड ऑफ द ईयर आई गॉट 25. नेक्स्ट ईयर फिर मेरा एडमिशन नेक्स्ट ईयर को 50 डबल हो गया, 50. बोले अरे वाह, बहुत अच्छा है, अच्छा चल रहा है, मतलब लोगों को मालूम पड़ रहा है, लोग या हैप्पी है कि हाँ. और तभी कोई टीचर नहीं थी, मैं अकेली थी, तभी कोई टीचर नहीं रखा था कुछ. आई वॉज पुटिंग माई फुल माइंड, हार्ट, सोल मैंने डाला था उसमें. उसके बाद देखा तो फिर 3rd ईयर में देखी तो अरे ये तो 100 का 200 हो गए नर्सरी के आए, क्योंकि टीचर्स नाउ टीचर्स रखने पड़े. फिर टीचर्स रख दिए, 2-3 टीचर्स रख दिए. और फिर वो मेरे ग्रैनी के रूम से मैं शिफ्ट होके एक जगह पे मैंने प्लांट सब तोड़ दिया और उधर एक नर्सरी बना दिया. और फिर वो चल गया. फिर वो मैं बोली वहाँ अभी नर्सरी के लिए मैं बोली अरे ये तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है. तब तक मैंने मेरे बच्चों को होली मेरीज में डाल दिया था. हाँ, तो वो बच्चे होली मेरीज में जा रहे थे. तब मैंने देखा कि मेरे जो बच्चे जो होली मेरी में जा रहे हैं, कहाँ तो भी मुझे लगा कि आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ स्कूल. हाँ, नहीं, मैं कब से, जब मैं कौन से स्कूल से आ रही, थाना के होली क्रॉस से आ रही हूँ. और दैट इज एन अमेजिंग स्कूल, गर्ल्स स्कूल रन बाय दोज नन्स, लॉरेटा सिस्टर्स, विच आर टू गुड. वो मतलब वो उन्होंने पढ़ाई की है ब्रिटिशर्स से. तो फिर वो हिसाब से मुझे यहाँ वो इतना एक्सपोजर नहीं मिला मेरे बच्चों को होली मेरी में. फिर मैं बोली नहीं, ये दिस इज नॉट एजुकेशन. आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन वॉट आई गॉट एजुकेशन, माई चिल्ड्रन शुड गेट दैट. वो मैंने जो एजुकेशन मिला मेरे को वो चाहिए था. जो गाने गा रहे थे, कॉन्सर्ट्स कर रहे थे हम, जो डिसिप्लिन था, जो इतने सारे एरियाज, मेरे को ऐसा लगा कि किधर तो भी माई चिल्ड्रन मिस कर रही है ये सब. तो फिर आपने खुद से मोटिवेट होकर के अंदर मेरे अंदर क्या है वो मैं लोगों में नहीं. फिर मैंने एक सर्वे भी किया कि भिवंडी के स्कूल्स में कितने स्कूल्स है और भिवंडी की नीड क्या है. तो मैंने ये देखा कि भिवंडी में काउंटेड स्कूल्स है, और तभी होली मेरी में इतने एडमिशन से लोगों को एडमिशन नहीं मिलता था. हाँ, बिल्कुल नहीं मिलता था. तो फिर वो मेरे को एक मतलब संकल्प आई कि नहीं, भिवंडी को अच्छा स्कूल चाहिए, भिवंडी में स्कूल होना चाहिए, एक अच्छा स्कूल होना चाहिए, और राइट एजुकेशन तुमको देना है उनको, स्पेशली तालीम जो है ना, डिसिप्लिन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट भिवंडी के लिए. तो फिर मैंने सोचा, मैंने हस्बैंड को बोल दिया कि चलो अभी बच्चे तो बढ़ रहे हैं, नर्सरी कितना रखेंगे, और भिवंडी की मांग भी है स्कूल के लिए. कितने स्कूल्स थे तभी, सिर्फ ओसवाल था न्यूली ओपन, होली मेरी था, एनियस था, केमियस था, पोदार था, बस ओनली दैट मेनी स्कूल्स. और भिवंडी के पॉपुलेशन के हिसाब से मेरे पास जो एडमिशन आ रहे थे नर्सरी के लिए, जूनियर सीनियर के नर्सरी के लिए, मैं बोली नहीं, आई थिंक वी शुड ओपन अ प्री प्राइमरी. चलो प्री प्राइमरी खोलते हैं. हाँ, स्कूल का तो बिल्कुल नहीं था. मैं बोली चलो खाली प्री प्राइमरी खोलते हैं. मैं हस्बैंड को बोल दिया, तो हस्बैंड बोले चलो फिर अभी प्री प्राइमरी खोलना है, जगह तो है. तो फिर ये इधर बिल्डिंग था, साइजिंग था, उसको तोड़ दिया, खाली ग्राउंड फ्लोर पे मैंने प्री प्राइमरी खोल दिया. उसका परमिशन लाए मेरे हस्बैंड. देखते देखते जूनियर का एक क्लास मिल गया नर्सरी में, क्योंकि स्कूल पूरा फॉर्म्ड नहीं था ना, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, पेरेंट्स तो वही देखते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ है, इंफ्रास्ट्रक्चर.
पर 50 पेरेंट्स केप्ट अ ट्रस्ट ऑन मी, उन्होंने ट्रस्ट किया मेरे को और जो बोले आपके नर्सरी के, वो बोले आगे हाँ, continue जो कर रहे हैं। 100 के 280 180 बच्चे थे, उसमें से 50 बच्चे बोले मैडम आपके जूनियर में हम डालेंगे। मैं बोली, वो लोग बोले जूनियर के बाद, मैं बोली सीनियर, उसके बाद में आप बाहर डाल सकते हैं। तो फिर मैंने जूनियर चालू किया, एक रूम में, एक ऑफिस में, और एक नर्सरी था। फिर वो बच्चे सीनियर में जा रहे थे, फिर हमने और एक रूम उसमें नीचे ग्राउंड फ्लोर पे जूनियर, नर्सरी, सीनियर। अगले साल जूनियर का मेरे को 2 क्लास मिला, जो 50 मिला वो 100 मिले उसमें। तो जूनियर सीनियर के बच्चे 100 हो गए, 50 थे, और सीनियर जूनियर के 100 हो गए, और नर्सरी का चल रहा था अच्छे से। तो फिर सोची अरे जगह तो है इधर, चलो प्राइमरी डाल देते हैं, स्कूल डाल देते हैं प्राइमरी। बेसिकली एक चीज इससे ये समझ में आती है कि अगर आपके इंटेंशन सही हो, हाँ। अगर आपको लोगों को सही या knowledge यू और हैड टू सही गिव इट, नो, education देना हाँ, हो, बिकॉज तो खुदा भी आपकी हेल्प करता है, क्योंकि मैंने देखा कि पेरेंट्स मेरे पे भरोसा कर रहे थे। Exactly. दे वर ट्रस्टिंग मी, दे ट्रस्टेड मी ब्लाइंडली, कि विदाउट एन इंफ्रास्ट्रक्चर कौन डालेगा फर्स्ट में स्कूल में, क्योंकि अरे बिल्डिंग ही नहीं दिख रही है। फिर भी तब भी वो पेरेंट्स ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, और उन लोग को लगा कि शी इज गिविंग गुड एजुकेशन। Yes, children are learning good, so that's the way it came up. Slowly, फिर first, It's amazing second. story. Just because we are time constrained, I Yeah. think it's amazing story जो हिसाब से आपने हाँ, start तो किया, वही जो हिसाब से एक आपका स्टार्ट grow था, हुआ। ग्रो। हाँ, And today you have such a big premise. It's Yes. amazing. So, ma'am, what do you feel? What does a typical day look like for a principal? एक typical दिन कैसा होता है principal का? प्रिंसिपल का दिन है ना, वो दिन से नहीं चालू होता है, वो रात से ही चालू होता है। Okay. वो रात से ही, मतलब वी आर वर्किंग इन अवर हेड कि कल के दिन क्या होना है। सो वो हम ऑलरेडी रात को, मतलब जब हम बैठे हैं या फिर कुछ टीवी देखते हैं, हमको आइडियाज आ जाती है, नेटवर्क, सोशल नेटवर्क, इंस्टाग्राम पे, इमीडिएटली हमको मालूम है कि कल का दिन अभी दिस इज द वे इट इज गोइंग टू स्टार्ट। So then we are very happy because we are supposed to give to society. देना तो है। हाँ, देना है, सोसाइटी को देना है। व्हाई आर वी डूइंग दिस? दिस इज नॉट ओनली कि पैसे के लिए। मनी कम्स ऑफ कोर्स लेटर, बट फर्स्ट इज बाय प्रोडक्ट, बट फर्स्ट इज that what are you giving to society, what product you want to give to society. तो वो हिसाब से हमारा दिन चालू होता है कि आजकल जो रात को सोचा था वो दूसरे दिन ये इसको अभी अमल करना है, इसको अमल करना है अब ये। तो द डे वी गेट अप वेरी हैप्पी वी आर कि हाँ चलो आज वापस नया दिन है, आज नया कुछ करना है बच्चों को। एंड देन ऑफ कोर्स रोज का रूटीन है। अगर आप आपके काम से प्यार नहीं करते हो तो आप काम नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ नो, यस, वेरी ट्रू, यस। तो प्रिंसिपल के लेवल पे पहुंचने के लिए आपको आपके काम से प्यार करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, यस। व्हाट इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर यू टिल नाउ? तब आपकी जिंदगी में आपको क्या था, ये चैलेंज था मेरे लिए, मैंने ये मेरे लिए चैलेंजिंग था और मैंने उसको पार कर दिया? लाइक दैट। हर दिन एक चैलेंज था मेरे लिए, हर दिन। आज क्या नया करना है, आज अब क्या परमिशंस लाने हैं, आज किसको फेस करना है, आज बच्चों के साथ क्या करना है, और वो क्या, कौन से बच्चों से हमको प्रॉब्लम्स है, कौन से बच्चे स्लो लर्नर है। इसमें भी है ना बहुत सारा प्रॉब्लम है। जो स्मार्ट रहते हैं वो ठीक है, लेकिन चैलेंजिंग जो है कि ये बच्चे जो है ना वो वी रिक्वायर रियली टू गिव अवर अटेंशन, द स्लो लर्नर्स। या देखो ये है ना कि ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन तो सब बच्चे मस्ती करेंगे, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। हाँ, बच्चे हैं ये तो करेंगे, लेकिन वेयर आर वी नॉट रीचिंग टू, विच चाइल्ड आर वी नॉट रीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है। 60 बच्चों में से, एक क्लास में 60 में से 20 बच्चों को अपना पूरा अटेंशन देना है, ये टीचर्स को हम बताते हैं। ये चैलेंजिंग है हमको कि हैव वी रीच्ड टू दैट चाइल्ड, टू एवरी चाइल्ड। इट इज नॉट लाइक अ फैक्ट्री कम एंड गो। ऐसा नहीं है कि भाई बस एडमिशन के नाम हाँ लिया और फैक्ट्री के जैसा किया और निकल गए। नहीं, यू हैव टू रीच टू दैट पर्टिकुलर 20 चिल्ड्रन ऑफ ईच क्लास। तो ये चैलेंज है। आपका रेशो आपने सेट किया, बाकी सब हाँ, टीचर 20 बच्चों पे होना चाहिए। यस, ये होना चाहिए, क्योंकि फिर दैट इज हाउ नो दैट यू गेट रिजल्ट्स एंड यू रीच आउट टू द पेरेंट हु इज सेटिस्फाइड कि यस
मेरा बच्चे को संभाल रही है, लोग बराबर कर रहे हैं। आगे बढ़ेगा जब वो रिजल्ट देखेंगे अपने Yeah, but it is not to do advertisement. See, word of mouth, it is not to do that. It is that, that comes yeah, automatically. yeah, that will become automatically. But it is more that are we, that is a challenge, that are we really fulfilling the thing what we have opened. कि मैंने एक स्कूल खोला है कि are we really up to the expectations of those parents who are not knowing anything? They are first generation learners ना, ये फर्स्ट जनरेशन। हमारे मम्मी डैडी को कुछ नहीं आता था, अभी भी हमारे पास बहुत सारे फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स है, तो फिर या देन यू हैव टू गिव इट टू देम इन द प्रॉपर वे फॉर सोसाइटी। मैम आप आपके स्कूल के कल्चर को किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं इन अ वेरी प्रिसाइज मैनर, लाइक शॉर्ट इसमें? हमारे स्कूल का कल्चर, इफ यू से सी, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ कॉस्मोपॉलिटन स्कूल. Yes, we have all different type of caste and we are different, हर तरीके के हैं. It's not कि हाँ we are taking this much percent and not percent wise, जैसे आए है it is open for everybody. तो स्कूल का कल्चर हमारा वही है कि we do not do any discrimination and we give it completely everything for the children. Yeah. तो कल्चर, if you go to see, if you are asking me what culture we follow, it's the same like how not school. in terms of that, in terms of like आप किस तरीके से उनको ग्रूम कर रहे हैं, मतलब क्या चीज़ बता रहे हैं कि नॉट सिर्फ एजुकेशन ही इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट? कि आप उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, मतलब चलो स्पोर्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्टेंट है, देखो अभी स्कूल का दुनियादारी भी इम्पोर्टेंट yes है। yes yes yes. So education is not everything. What they come here only not for education. It's different developments. अब different developments में होता है कि physical development होता है, तो हम फिजिकल में स्पोर्ट्स के लिए नाउ वी आर बिल्डिंग अ बिग स्पोर्ट्स स्टोर फॉर वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एंड ऑल. फिजिकल डेवलपमेंट होता है, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट स्कूल में आते, पढ़ाई के लिए आते, इमोशनल डेवलपमेंट होता है. तो फिर इमोशनल डेवलपमेंट के लिए भी हमारे पास बच्चों के लिए काउंसलिंग होता है इधर एंड ऑल. वी सी दैट या वी हैव मेनी स्पीकर्स कमिंग टू स्कूल. आज भी अभी एक स्पीकर आया है हेम एजुकेशन का, जो बच्चों से बात करते हैं कि अब बात करना बहुत जरूरी हो गया है. अब है ना, तुम लकड़ी लेके मार लिया, चुप बिठाया नहीं, अब उसको रीजनिंग करना है उनसे और बोलना है कि ऐसे करने से ऐसे होता है, वैसे करने से अच्छा होएगा, बुरा करने से अपना बुरा. यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड लॉ ऑफ nature, that is karma. Yes, the most important thing is we tell them that what you do, that is what we do. So emotional development, physical development हो गया, intellectual, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट. स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में हम ऐसा नहीं बोलते कि यही भगवान को प्रार्थना करो. तुम आंखें बंद करके किसी तुम्हारे भगवान के बारे में सोचो और फिर प्रार्थना करो. There is no one name, it is only the Lord. It is the Lord. The God. Yeah, the Lord or the God. It is so particular. So that is what we follow. That we tell you, close your eyes and think of your God in your house, what is there, and then pray. Because praying is very important. If they don't pray, they'll not have a conscious. Yes. वो एक वो जो होता है खुदा का डर या खुदा से मांगने का जो वो है, होना ज़रूरी चाहिए, है वो होना बच्चों में. जरूरी है. एम्पैथी होना चाहिए बच्चों को. एम्पैथी, हाँ, कि अगर ये मेरे साथ हो गया तो इसके लिए उनको फीलिंग होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं किसी को एक थप्पड़ भी दे रही हूँ ना, तो दूसरा बच्चा देखेगा ना, तो उसने हंसना नहीं चाहिए, उसको बुरा लगना चाहिए कि अरे मेरे दोस्त को मार मिल रहा है. तो बच्चों को क्या है ना, आजकल बच्चे हंसते हैं, दे मेकिंग फन. सो दैट यू हैव टू मेक देम अवेयर कि नो, दिस इज रॉन्ग, यू कैन, आई एम हिटिंग, यू कैन, तुम नहीं हंस सकते हो. तुमको इनफैक्ट, क्योंकि कुत्ते को भी हम मारेंगे तो हमको बहुत बुरा लगता है, एक एनिमल को, तो इट इज ह्यूमन बीइंग. तो हाउ आर यू गोइंग टू लुक एट अ ह्यूमन बीइंग? यू हैव टू बी मोर, हैव एम्पैथी. तो ये है सब. So these are the developments what we do for children in school. Then we have lot of speakers coming in school, because I told you बात करना बहुत important है बच्चों के साथ. Yes, और not speakers from Bhiwandi, but speakers from all over Mumbai, Thane, so that they come and take sessions. And they have every day one session where the person will come and talk about anything, cryptocurrency ho. Yeah, because what do children know of Bhiwandi? What do they know? So it may be of cryptocurrency, it may be about behavior, it may be about empathy, any topic. But somebody coming and hammering them and making them understand what is life. Life क्या है? It's not just coming to school, 10वीं किया, 12वीं किया. और तुम्हारा फोकस कैसा होना चाहिए कि आप एक प्रोडक्ट बन के
आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे हमारे नेशंस को? मैं तो नेशन को नहीं बोलती, हमारे खाली सोसाइटी में भिवंडी को अच्छा बनाओ। यू ऑल आर द फ्यूचर जनरेशन, आप फ्यूचर जनरेशन है। आप जो काम कर रहे हैं मुझे अच्छा लगा कि अरे you all are taking that, giving it to society and making people aware कि हमारे भिवंडी को कैसे कहाँ हमको और सुधारना है, कितना है मतलब what we are teaching is for the children कि give to society, give back to society. राइट मैम, टीचिंग क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और करंट ट्रेंड के साथ में चलने के लिए मतलब व्हाट स्टेप्स योर स्कूल टेक, मतलब आपके स्कूल क्या मेजर्स लेती है उसके लिए, मतलब करंट ट्रेंड से साथ में, और आपके टीचर अपडेटेड रहे हमेशा। जैसा मैंने अभी एक राउंड किया आपके स्कूल का बिफोर कमिंग ईयर, मैंने देखा आपकी जो ऑडियो विजुअल बोर्ड्स लगे हुए, दैट इज समथिंग अमेजिंग। मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज़ मैंने भिवंडी में फर्स्ट टाइम देखी है। तो ये मतलब कहाँ से आपको इंस्पायर हुआ और आप क्या मेजर्स लेते हो इसके लिए? Manan, this is a very good question. You know what? In Bhiwandi, we are the first school. I'm not boasting. It's a very humbly I'm telling. We are the first school to go digital. हाँ, अब ये हमको कहाँ से मिलता है? सी आई कम आउट फ्रॉम अ बैकग्राउंड फ्रॉम थाने. आई नो प्रिंसिपल्स ऑफ वेरियस स्कूल्स ऑफ मुंबई के स्कूल्स के, और हम है ना टीचर्स का एक एसोसिएशन होता है, तो थाना के एसोसिएशन में हमारे पूरा महाराष्ट्र के जितने स्कूल्स हैं वो हम आते हैं एक सेमिनार के लिए या कुछ ऐसा प्लान करके प्रोग्राम होता है। हाँ, जो वी आर कमिंग फॉर अ कॉन्क्लेव करके, तो वो कॉन्क्लेव में हम जब बैठे हैं तो वी शेयर आइडियाज़। तो तभी मुझे मालूम पड़ता है कि अरे हम तो भिवंडी में कुछ नहीं कर रहे हैं। We are not giving it to the children at the right time. What has to be given? जब चाहिए, जब देना है उसको तभी देना है। You cannot say कि हाँ we will do it later. तब हमारे पास 15 साल से वो बोर्ड्स है, अब लोग डाल रहे हैं बोर्ड्स, लेकिन तभी मैंने मेरे पेरेंट्स, तब इसके लिए मैं बोली ना कि जब मेरे को एडमिशन मिलते रहे, दे सॉ कि पोटेंशियल ये प्रिंसिपल मैडम दे रही, अपडेट कर रही है बच्चों को। वी आर नॉट उनको डिप्राइव नहीं कर रहे कि हाँ ये भिवंडी है इधर नहीं होगा, ये सब अर्बन है, नहीं इसको दे दो, चाहे तब भी दे दो उनको। तो वो हम जाते हैं जब भी दूसरे स्कूल्स में दूसरे प्रिंसिपल्स को मिलते हैं, तब हमको ये नॉलेज आता है। You cannot just live in Bhiwandi and you cannot do everything. Man is not an island that he will sit over there. You have to go when you want to and give it to the children. तो तब हमने डिसाइड किया कि we'll go digital. तो अब हर चीज़ डिजिटल है, ERP है, सिस्टम्स है, सब जो भी है ऑल डिजिटल। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। तो मैम आपकी स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर, फॉर एग्जांपल लाइक कोई बच्चा स्कूल में होता है कि जो एजुकेशन में इतना अच्छा नहीं होता है, पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं होता है, बट वो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा होता है, क्रिकेट में अच्छा होता है, डांसिंग में अच्छा होता है, सिंगिंग में अच्छा होता है, अदर लाइक पेंटिंग में हो गया, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर में, तो उस बच्चे को आप किस तरह से देखते हो और उसके लिए आपके पास कोई स्पेशल टीम है कि भाई चलिए कोई बात नहीं, एजुकेशन में अच्छा नहीं है तो लेट्स पुट दिस गाय इन स्पोर्ट्स, इसको आगे बढ़ाया जाए यहाँ पर? देखो मनन, अभी क्या हो गया ना, NEP है ना, NEP is going to make a very big change. That is how we are going to choose children and give that kind of education. पहले कैसा था, एक स्टैंडर्ड पैटर्न था। We had our education policy was not changed for so many years. I think how many years it was not changed. हाँ, वही रट्टा पिट्टा, मतलब मैं देख रही थी वही शिवाजी, वही औरंगजेब, वही वो पढ़ा रहे थे। मतलब क्या है, what is this? We are come now with a digital age. चिल्ड्रन खाली मोबाइल खोलेंगे तो इतना नॉलेज मिलता है उनको, और व्हाट आर वी टीचिंग देम? शिवाजी एंड औरंगजेब एंड ऑल वी आर टीचिंग देम? नो नो नो, नाउ वी हैव टू सी दैट कि उनका हुनर किस में है, बच्चों का हुनर किधर है। तो वो गवर्नमेंट वही तो कर रही है, NEP क्यों लाया है कि जिधर बच्चों का हुनर है उसमें आप उसको है ना डाल दो, कि उसका है ना वो चीज को ऑन करो उसको, और उसको उसमें उसका प्रोफेशन में उसको चूज करने दो कि लेट हिम गो दैट। सो NEP इज गोइंग टू ब्रिंग अ वेरी बिग चेंज। क्या जैसे कि मैंने ना अभी एक कोड पढ़ा था मैम, क्या इफ योर चाइल्ड गेट्स अ लो स्कोर इन मैथ्स एंड हाई स्कोर इन पेंटिंग, तो उसके लिए आप पेंटिंग का टीचर रखो, ना कि मैथ्स का। वेरी राइट, यस। इसका मतलब ये है कि अगर वो वहाँ अच्छा है तो उसको यहाँ अच्छा बनाने मत देखो, अगर वो पेंटिंग में अच्छा है उसको मैथ्स के पास मत भेजो, छोड़ दो उसको पेंटिंग में आगे बढ़ाओ। लाइक तो वो अवेयरनेस होना ज़रूरी है आज की तारीख में। मेरे को जहाँ तक के पता है
थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स कल्चर है भिवंडी में। मैं ये तक मानता हूँ कि आपके पास भी कई पेरेंट्स आते होंगे, मेरे बच्चे ने अच्छा नहीं पढ़ा, इतने मार्क्स कम कैसे आ गए, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया। दे कंप्लेन अबाउट मार्क्स, दे कंप्लेन कि मेरा एक ग्रेड नीचे क्यों आ गया। वो ये नहीं देख रहे कि उनका बच्चा क्रिकेट में अच्छा है, या फुटबॉल में अच्छा है, या पब्लिक स्पीकर बन सकता है, या कोई फ्यूचर का कोई वो बहुत बड़ा कुछ और बन सकता है। तो वो अवेयरनेस लाना बहुत ज़रूरी है। और जो आपने कहा NEP आ रहा है, या जो आप इनिशिएटिव्स ले रहे हो, मैंने ये भी देखा कि आप स्कॉलर्स की क्रिकेट की टीम भी है। अरे अभी तो बहुत अच्छा है, देखो अभी क्रिकेट की टीम हो गई। अभी ये बच्चे, ये साल हमने स्पोर्ट्स के लिए 4 कोचेस रख दिए, दैट ऑल्सो नेशनल प्लेयर्स रख दिए। तो हमारे बच्चे ने KMS से खेले, KMS हार गया। फिर उसके बाद हम लोग ने फुटबॉल मैच, फिर ऑल सेंट्स में था। फिर उसके बाद यही साल हम लोग उतरे। मैं बोली नहीं, स्पोर्ट्स में चाहिए, बिकॉज चिल्ड्रन आर ओनली ऑन दिस। तो वेयर आर दे गोइंग टू स्पेंड देयर स्टेमिना, या कैसे बिल्ड करेंगे स्टेमिना। तो फिर और हमारे पास स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड भी नहीं था, इसके लिए हमने वो परचेस किया कि उधर बच्चों को अभी करना ही है, उनको उतारना ही है। बिकॉज उनका जो एनर्जी है उनका, उसको कहाँ स्पेंड करेगा, वो कहाँ, वो फील्ड पे स्पेंड करना चाहिए। फिजिकल उनका स्टेमिना अगर नहीं रहेगा तो व्हाट इज द यूज इफ दे आर ओनली गोइंग टू सिट एट होम एंड मोबाइल पे बैठेंगे, यूट्यूब पे बैठेंगे, टीवी पे। तो इस हिसाब से वी हैव गिवन देम नाउ लॉट ऑफ, दे आर गोइंग टू गो फॉर खो-खो, दे आर हैविंग लॉट ऑफ कबड्डी प्रैक्टिसेस, दे आर हैविंग फुटबॉल प्रैक्टिसेस, दे आर गोइंग टू, वी आर गोइंग टू फॉर्म अ न्यू टीम फॉर थ्रो बॉल, वॉलीबॉल, एंड द फोकस इज नाउ that you have to play for Khelo India. Exactly. That is what, not you play for zonals, you play inter, yes, over there, that you play for national levels, yes, you play for international. तो that is what I feel that yeah, बहुत कर लिया, एजुकेशन कर दिया, लेकिन नीड, अब what is the want at this time need is physical endurance, yes. हैप्पीनेस क्वेश्चन, बच्चे का हैप्पीनेस क्वेश्चन, आर ही हैप्पी, इज ही हैप्पी, स्कूल में आ रहा है क्या, खुश है वो, अब तो बहुत खुशी से आते हैं, अरे आज प्रैक्टिस है, आज ये करना है, आज वो करना है। मेरा एक भाई है, तो अभी तो वो बॉम्बे चला गया पढ़ने के लिए, बट वो बहुत एंथुजियास्टिक है क्रिकेट को लेके। तो अभी उसने अच्छे कोचेस भी लगा लिए है। तो ही इज लाइक कि यार जिंदगी में पैसा सिर्फ पढ़ के नहीं कमा सकते हैं, देखो पढ़ाई ज़रूरी है, बट उसके साथ में आपके साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर जो होता है ना, अगर आप उसमें अच्छे हो तो आप उससे पैसा कमा सकते हो। सिर्फ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नॉट ओनली एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट, ये समझना ज़रूरी है। सो वी आर नाउ, फॉर मी मोर इम्पोर्टेंट इज एजुकेशन से ज़्यादा मुझे है ना इम्पोर्टेंस है डिसिप्लिन और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्वेश्चन, ये 2 चीज वेरी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा खुश है क्या स्कूल में आने के लिए, और किस लिए खुश है वो उसको रखना है, उसके लिए वो देना है। और डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन में रहना है, देयर इज नो कॉम्प्रोमाइज ऑन डिसिप्लिन। तालीम तो होना चाहिए, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल हाउस एंड देन इट कंटिन्यूज इन स्कूल। सी मैंने एक, इफ़ यू नो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो का एक कोट पढ़ा था मैंने, इट इज़ नॉट योर टैलेंट, इट इज़ नॉट ओनली योर हार्ड वर्क विच मेक्स यू सक्सेसफुल। आपका डिसिप्लिन आपको सक्सेसफुल बनाता है ज़िंदगी में। अगर आपने ठान लिया है कि मेरे को सुबह 6 बजे उठना है, तो वो चाहे बारिश गिरे या तूफान आए, आपको 6 बजे उठना है। तो डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। राइट। सो मैम द कमिंग क्वेश्चन इज बिट पर्सनल, अगर आप आंसर देना चाहें तो ठीक है। तो मैम व्हाट इज़ योर बिगेस्ट फेलियर इन योर लाइफ? आपकी ज़िंदगी में आपको क्या लगता है कि यार ये मेरा फेलियर था, बट मैंने इससे गो थ्रू करके मैंने इसका राइज अप कर लिया है? नहीं, जैसे मैंने आपको बोला कि एवरी डे इज़ अ चैलेंज फॉर अस, एवरी डे, एंड वी फेस दैट चैलेंज। एक इंसिडेंट आपकी लाइफ में हुआ और आप मतलब बिखर गए हो, वो एजुकेशन इंडस्ट्री से हो, नॉट पर्सनल लाइफ, यार अब तो कुछ नहीं बचा यार, फिर आपने उसके ऊपर एफर्ट डाला, देन अगेन यू स्टार्टेड। My only failure I see that when somebody removes their child from the school ना, जब कोई अपना बच्चा निकालता है ना स्कूल से, तब मुझे बहुत दुख होता है कि कहाँ हम कम पड़ गए, हमने क्या ऐसा हो गया कि हम कहाँ पड़ गए कि वो पेरेंट सेटिस्फाइड नहीं था, वो मेरे को बहुत दुख होता है। बाकी दूसरा कुछ मुझे, आई एम नॉट हैविंग एनीथिंग डिफरेंट दिस अबाउट, यू कैन अचीव एनीथिंग इफ यू हैव अ विल, नो यू कैन अचीव एनीथिंग, बट ये कहाँ हम कम पड़ गए कि इसने बच्चे को निकाल दिया, वो हमेशा मेरे को फिर वो टिक 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 करते हैं कि किधर तो भी गलत चल रहा है, किधर तो भी कुछ तो भी हो रहा है। फिर उसको है ना देखना है कि फिर उसको पूछे कि क्यों, क्या हो गया, फिर वो एरिया को उसको
इम्प्रूव करो हम, बस उधर ही फेलियर है। अदरवाइज कि एक भी बच्चा मेरा निकल गया ना विदाउट डूइंग हिज एसएससी, फिर मुझे ऑफ कोर्स आजकल बहुत सारे स्कूल्स भी आए हैं। आई अंडरस्टैंड कि किसी को सीबीएसई में जाना है, किसी को आईसीएसई में जाना है, हाँ, और कोई अफोर्ड करता है, पहले नहीं करता था। अभी सब पेरेंट्स जो है, अब जो नए जनरेशन के पेरेंट्स जो है वो दे इन्वेस्ट भी कर रहे हैं और सम आर एजुकेटेड, तो उनको अच्छा ऐसा लगता है कि नहीं स्टेट बोर्ड से अभी वी हैव टू, क्योंकि दैट इज द वांट ऑफ द टाइम। सो वो दूसरे, लेकिन वो R&D करती हूँ कि क्यों निकला यहाँ से, क्या किया है, क्यों, क्या प्रॉब्लम है। सो दैट इज वेयर आई ऑलवेज फील दैट हाँ यहाँ फेलियर होता है। सो मैम, जो आज के यूथ है जो सोशल मीडिया के बहुत करीब आ गए हैं और रीडिंग, लिसनिंग बुक्स, टॉकिंग टू देयर फ्रेंड, मतलब आज जो 4 लोग बैठते हैं तो वो सिर्फ 4 लोग मोबाइल पे बैठे हैं, तो वो यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? बिकॉज ये स्कूल से ही स्टार्ट होता है। आप देखोगे जो स्कूल का बच्चा घर पे जाता है तो वो बैग फेंक के डायरेक्ट मोबाइल लेके बैठता है, तो आपकी तरफ से क्या सजेशन होना चाहिए कि वो अवेयरनेस क्रिएट करे कि नहीं मुझे बुक पढ़ना है या मुझे सुनना है लोगों को? ये है ना, मोबाइल जो घर से लेते हैं वो उनका थोड़ी ना खरीद के लेके आ रहे बच्चे अपना पैसे से। किसका मोबाइल है ये? कौन दिया है इनको मोबाइल? यहाँ से स्टॉप होना चाहिए। जैसे मेरा ग्रैंडसन है उसको, और मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, उनको मोबाइल नहीं देते। नो स्क्रीन टाइम, वी हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, नो स्क्रीन टाइम, नो स्क्रीन टाइम, मोबाइल देना नहीं है। आप अगर बच्चे को खाना खाने के लिए, चलो खाना खाओ, इसके लिए मोबाइल देते, हाँ। ये बहुत बहुत कॉमन प्रैक्टिस है आज, इवन मैं भी मेरे बच्चे साथ में कर चुका हूँ इसके लिए। आई एम सो सॉरी। सो दैट इज व्हाट नो, सो वेयर इट स्टार्ट्स, हु गिव्स हिम? स्कूल में रहता है ना 6 घंटा विदाउट मोबाइल, रहता है ना 6 घंटा बैठता है ना स्कूल में। 6 घंटा मतलब घर से निकलता है 11 बजे, फिर पूरा मतलब घर से 6 बजे निकलता है, 6 बजे उठता है, निकलता है, घर पे पहुंचता है 2 बजे, मतलब 7 hours ही रिमेन्स विदाउट मोबाइल, ही रिमेन्स, नो। Then where is the challenge? It is at home. You can't control your child. आपको कंट्रोल करना चाहिए। डिफरेंट प्रैक्टिसेस आर देयर, हाउ यू विल कंट्रोल। टारगेट दो उसको, आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स, यू गिव टाइम स्लॉट दे दो कि आई एम गिविंग यू 30 मिनट्स, डू व्हाट यू वांट। आफ्टर दैट नो, यू हैव टू, और वो बचपन से ही होगा तो वो बड़े होने के वक्त यस, यूज नहीं हाँ, नहीं होगा। लेकिन मेरा पोता भी है ना, उसको जब मोबाइल दिखता है वो खींचना चाहता है, बट नो, नो इज नो, नो, यू हैव टू बी फर्म। होना जरूरी है। स्ट्रिंजेंट, जब आपका बच्चा देखता है कि मेरी माँ यहाँ स्ट्रिंजेंट है, यहाँ स्ट्रिक्ट, यहाँ मेरी नहीं चलेगी, तो अपने आप वो कंडीशन हो जाता है, वो कंडीशन हो जाता है, हाँ, कि यहाँ नहीं चलेगा। जैसे पढ़ाई, अगर माँ पढ़ाई लेगी ना और ट्यूशन को भेजना इज वेरी डिफरेंट। अगर ट्यूशन को भेजते हो ना तो माँ का रिस्पेक्ट कम होता है, इधर एकदम कम हो जाता है। इट डजंट बॉदर कि हाँ, लेकिन अगर माँ अगर रोज पढ़ाई लेगी या बुक भी देखेगी ना, बच्चा डर जाएगा, माँ का इज्जत करेगा, मम्मा को बैक आंसर नहीं देगा। इट्स ऑल इन द हाउस, इट्स ऑल इन द हाउस। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा आंसर किया मैम आपने इसका। ये इससे ना मेरे ख्याल से बहुत जो देख रहे हैं आज हमारा ये पॉडकास्ट, तो ये बहुत अच्छा मैसेज गया है वहाँ पर। और कंट्रोल आपको करना ही है ना बच्चों को, हाँ, आपके वो थोड़ी देर ना, आपके पेरेंट्स नहीं है, आपके बच्चे हैं, कितना एज डिफरेंस है आपको, ये मैनिपुलेट करना उनको बहुत अच्छे से आता है। क्योंकि अपने पास क्या हो गया आजकल, एक बच्चा है या 2 बच्चे, हम सोचते हैं नहीं दे देते हैं, बच्चे को अपसेट नहीं करते, उसको अनहैप्पी नहीं करते, और बड़े रह गए बच्चे को तो ऐसा लगता है कि अरे ये सुसाइड करेगा, ये डिप्रेशन में जाएगा। सो दे यू मस्ट नो, यू आर अ पेरेंट ना, आप बाप है, आपको मालूम पड़ना चाहिए कैसे मैनिपुलेट करने का है इसको। तो आप क्या टाइम दे रहे हैं बच्चे को? यू हैव टू इन्वेस्ट। आपको टाइम नहीं है इसके लिए, आप बोलते लेकर क्या करना है। राइट। ओके, सो मैम, लास्ट क्वेश्चन टू आवर ऑडियंस, एक आखिरी मैसेज जो आप आज के यूथ को देना चाहेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि आज का जो यूथ है, आप लोग सब लोग यूथ है। मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम बोलते हैं रोड्स नहीं बने हैं, रोड्स में इतना सारा खड्डा है, रोड्स में कचरा कुंडी है, पूरा गार्बेज इतना है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हम ये सब कंप्लेन करते हैं। लेकिन व्हाट आर वी डूइंग? हाउ आर वी गोइंग टू कंट्रीब्यूट? ये जो इंडिया है, ये फ्यूचर का इंडिया, आप कैसा देखना चाहते हैं इसको? व्हाट इज योर ड्रीम ऑफ शोइंग दैट इंडिया? सो आपको आवाज उठाना है ना, हमको आवाज, वी वांट दिस,
वी आर पेइंग टैक्सेस ना हम। एग्जैक्टली इसलिए हमने चैनल भी चालू किया लाइफ इन भिवंडी, एंड दिस पीपल आर डूइंग अमेजिंग वर्क। ये हर चीज़ को इतनी बारीकी से कवर कर रहे हैं। क्लीन रोड्स, नो गार्बेज, वाटर, सैनिटेशन, मेडिकल, अवर हॉस्पिटल्स एंड ऑल, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है वो फुल फ्लेज अच्छे से होना चाहिए गरीब के लिए। दिस इज वर्क यू हैव टू, दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल द यूथ दैट हाउ मच आर यू रेडी टू गिव टू मेक इंडिया सुपर पावर। आप कितना दे रहे हैं, आपका क्या है इंडिया के लिए, व्हाट इज योर दिस। कंप्लेन करेंगे लेकिन व्हाट कैन यू डू, यू गो लिटिल बियॉन्ड, यू गो नो, आप जाओ म्यूनसिपैलिटी में जाओ, कमिश्नर के पास जाओ, ड्राइव्स करो, पिटिशंस फाइल करो, ये करो वो करो। यू आर यूथ, इफ यू आप अगर यू डोंट रेज, हाउ आर यू गोइंग टू गेट इट। इफ यू हैव अ लेड बैक दिस काइंड ऑफ दिस दैट, जाने तो चल रहा है, चलने देना, जैसा है चले, मेरे को क्या है, मेरा घर अच्छा है, मेरा सराउंडिंग मैंने क्लीन रखा है। बट अरे व्हाट अबाउट अदर पीपल हु आर गिविंग नेम्स टू भिवंडी, हाँ कि आप कहाँ रहते हो, दे आर टेलिंग अस वेयर आर यू स्टेइंग। चलो वी आर वॉट एवर वी आर स्टेइंग, वी आर गिविंग आवर, हम हमारा श्रम दे रहे हैं सोसाइटी के लिए। हम तो चलो एजुकेशन अच्छे से स्प्रेड कर रहे हैं, जिधर नहीं है हम दे रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी थिंग्स मोर विच भिवंडी, सो इम्प्रूवमेंट बहुत होना चाहिए। और ये अगर इंडिया को, अभी देखो इंडिया का GDP वेयर वी हैव रीच एट द 5th पोजिशन इन इकोनॉमी, वेयर we left England behind, who was ruling us at one time. England was ruling us, yes. We have a prime minister. Yes, and we have a prime minister over there. See what is there to learn. America is come first, then there is China second, then there is Japan third, then there is this one, who is that? No, Russia, no, Germany, I think, and India is come 5th. Imagine that is what in 25 years. अभी अमृतसर है, बच्चा अमृतसर है ना, 75 years ये साथ, उसके बाद 25 years you are going to be there in India, all these children are going to be, so you have to have that motivation कि तुमको कुछ करना है। हमारा तो चलो हमने कर दिया, हमने तो इतना कर दिया, लेकिन अब तुम क्या कर सकते हो, तुम यस तुमको अभी यू हैव टू कंट्रीब्यूट कि तुमको क्या चेंज करना है। उस चेंज के पीछे लगना है थ्रू सोशल मीडिया, आपके पास मीडिया पूरा है, यस इट विल गो थ्रू दैट ओनली। जगाओ लोगों को, दे स्लीपिंग कि व्हाट इज इट, वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट इज व्हाट वी गिव द यूथ। यस, सो हमारे यूथ जो है 11th और 12th को, तो हमारे बहुत सारे टॉक्स होते हैं उसको कि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट, फोकस करो और योर राइट्स, आस्क योर राइट्स। इफ यू आर पेइंग टैक्स, if you are paying tax, expect, yes, if you are paying tax, expect, ask for your right, yes, आवाज उठाओ उसके लिए। राइट, ओके, सो मैम थैंक यू सो मच, इट वॉज वंडरफुल पॉडकास्ट, वंडरफुल टॉकिंग विथ यू, अमेजिंग इंसाइट्स, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन। मैं सोचता हूँ कि जो हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है वो बहुत अमेजिंग होने वाला है। जब ये लाइव जाएगा, जब लोग देखेंगे इसको, और आप लोग जो देख रहे हो इस चीज़ को, तो बहुत शुक्रिया मैम का भी जिन्होंने टाइम दिया, और आप सभी लोगों का जिसने इतनी आखिर तक इस चीज़ को सुना। और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो मैम ने कहा है यूथ के लिए, वो उस चीज़ को आप इनिशिएटिव ले और उस चीज़ के पीछे पड़े। अगर आप टैक्स भरते हैं, नहीं भरते हैं, कोई वादा नहीं, आपके घर से कोई ना कोई भरता होगा, प्लीज़ आवाज़ उठाइए, आस्क फॉर योर राइट्स, आवाज़ उठाइए। और हम ही को चेंज करना है हमारा भारत, और हम ही को इसके लिए काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, टिल देन गुड बाय, टेक केयर। Thank you so much.